Welcome to the digital classes of class 10th. Today we are going to start our 7th unit, and this unit consists three chapters, and the first part of the chapter is A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. So this unit is about the people doing different jobs. Like the first part is about a baker from Goa, as Goa is famous for the baking. The second, Coorg is a place famous for Coorg is a country that is famous for coffee and is a coffee country. And next is a tea from Assam. That is, Assam is in India and it is famous for tea. Okay, so let us start our first chapter of this unit, that is A Baker from Goa. So before starting the chapter, the narrator says that what images of the people and the places come in our mind when we think of our country. Our country is famous for diversity, different type of people, different type of jobs, different cultures. Diversity is India is the only country where we see this type of diversity. Okay, the different part of the country have different values, virtues, and their own custom and religions. Okay, so then the narrator says, what part of India have you lived or visited? Can you name the particular tourist destination? Okay, then the narrator again says, you may know that apart from the British and the Dutch and the French and the Portuguese have also played a part in the history of our country. Can you see the part of India now, French and the Portuguese influence? And the narrator asks that, can you name that which part? Okay. After that, he says, can you say which part of the country grow tea or coffee? So that we all know that Assam is famous for that tea, very much famous for it, and the coffee. Here, coffee country is Coorg. Okay. So this is all we need to know about our country. A baker from Goa. The story starts with a pen portrait of a traditional Goa village where village baker who still has an important place in his society. So this is pen portrait of a traditional village baker. Okay, कि villages में जो bakers होते हैं उनकी कैसी लाइफ है, वो कैसा उनका करेक्टर होते हैं, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होती है, उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous love of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixtures, the molders, and those who bake the loaves. Those age old time tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has yet not been extinguished. The thud and the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as padder in Goa. So this chapter starts with saying that the narrator says कि that our elders, जो हमारे ancestors जो elders हैं, वो जो पुर्तगीज़ थे उनके बारे में उन दिनों को याद करते हुए बोलते हैं कि जो पोर्टुगीज़ थे उस टाइम जो फेमस थे ब्रेड के बंडल हुआ करते थे. ओके, लॉफ्स ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड के बड़े बड़े बंडल्स हुआ करते थे, लोफ होते थे. ठीक है. सो दोज ईटर्स ऑफ लोव माइट हैव वैनिश्ड. तो वो लोग, वैनिश का मतलब होता है गायब होना. हेयर इज द वर्ड रेमिनिशिंग नॉस्टैल्जिकली. इसका मतलब होता है दैट इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट. जब हम अपने पास्ट के बारे में बहुत ही शौक से उसके बारे में जब सोचते हैं, बहुत फॉन्डली. ओके, सो ही सेज कि जो पोर्टुगीज़ थे वो बहुत ब्रेड खाते थे. उस गोवा में ज़्यादातर जो पोर्टुगीज़ पीपल थे तो वो ब्रेड को ज़्यादा यूज़ करते थे.
ओके। लेकिन वो आज की डेट में अगर हम बात करें तो गोवा में से वो वैनिश हो चुके हैं, पोर्टुगीज पीपल एंड द लवर ऑफ लोव्स। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर एंड द मोल्डर्स दोज हु बेक दी लोफ। वो कहते हैं कि आज भी हमारे आसपास मिल जाते हैं वो मिलाने वाले, बेलने वाले और जो रोटी सेकने वाले हैं, वो आज भी हमारे बीच में हैं। ब्रेड को इतना अब भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जैसे अब तो किसी भी स्टेट में आप चले जाएँ तो डिफरेंट टाइप का आपको मिल जाता है। आप गोवा में जाए तो आपको पंजाबी तड़का, पंजाबी स्टाइल्स भी मिल जाएगा। पंजाब में है तो आपको वहाँ गोवा स्टाइल या मतलब दूसरी कंट्री का भी अब डाइवर्सिटी जो है हर स्टेट का टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम की बात अगर करें तो वो कहते हैं कि वो गोवा फेमस ही इसलिए था कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को यूज़ करते थे। ओके। और बेकर्स भी वहाँ पर थे। सो दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। एंड उस टाइम की जो फर्नेसेस होती थी, फर्नेस होती है जिसमें वो जो भट्टी में बेक किया जाता है पहले ज़माने में, जो या अभी भी जो मशीन्स होती हैं जो उनमें जिसमें फर्नेसेस में बेक करते हैं उसको, एक को, या फिर कोई भी ब्रेड या फिर केक, कुछ भी जो बेक करते हैं, बिस्किट्स, ब्रेड, बन। ओके। सो वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पर। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ येट नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। ऑल्दो कि वहाँ जो फर्नेसेस है उनकी जो फायर है वो एक्सटिंग्विश नहीं करती है अभी तक, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझना, आग का बुझ जाना, कि वो अभी भी बुझी नहीं है, अभी भी यूज़ होती है। ओके। वो अब वो कहते हैं कि द फायर फर्नेसेस द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। एंड थर्डिंग, थर्डिंग होती है उसकी जो साउंड होती है, एंड जिंगलिंग साउंड जो होती है, तो वो कहते हैं अभी भी स्टिल इट एग्जिस्ट ट्रेडिशनल बैम्बू बेकर्स की जो बैम्बू है, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। इधर उधर जो वो घूमते हैं उसको सुबह सुबह मॉर्निंग में इधर उधर बेचने के लिए। बेकर के जो बांस होता है, बैम्बू स्टिक, उसकी जो खनक होती है और उसके जो इधर उधर घूमने की जो आवाज़ें लगाते हैं, कुछ जगहों पे अभी भी हम सुन सकते हैं। द नरेटर सेज दैट मे बी कि जो फादर है वो अलाइव ना हो, लेकिन उनका अभी भी बेटा जो है अपने फादर के काम को आगे बढ़ा रहा है। तो जो एक पारंपरिक जो काम चला आता है, ट्रेडिशनल जो काम चला आता है, वो अभी है। ये बेकर आज भी पेडर के नाम से तो क्या होते हैं, फेमस हैं, वहाँ पेडर बोलते हैं उन्हें अभी भी गोवा में। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। एंड हमारे नरेटर बताते हैं कि हमारे चाइल्डहुड में जो बेकर थे वो हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन, गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, और एक दिन में 2 बार आया करते थे। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. And the narrator says that कि when he set out in the morning, कि जब मॉर्निंग में अपना जाने के लिए, चक्कर लगाने के लिए वो सब करते हैं, इधर उधर घूमते थे, तो अपनी खाली टोकरी लेके ही लौटते थे। मीन्स जितना सामान लेके गए हैं वो सब सेल आउट हो जाना चाहिए, खाली लेके ही लौटते थे, एम्प्टी करके ही एम्प्टिंग करके अपनी बास्केट को तभी लौटते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू वोकस अप फ्रॉम द स्लीप। एंड उनकी जो जिंगलिंग साउंड होती थी बैम्बू में जिसमें वो रखते थे, वो साउंड हमें अलार्म का काम करती थी उस टाइम। वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, कि वो ब्रेड वाला बेकर आ गया तो हम उसको मिलने और उसको देखने के लिए, ग्रीट करने के लिए, विश करने के लिए भागे भागे जाते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था उस टाइम? वॉट इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या सिर्फ वो एक ब्रेड के लिए प्यार था? नॉट एट ऑल। द लोव्स वर बॉट बाय सम पेस्किन एंड बेस्ट्रिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। कि ब्रेड तो वो पेस्किन और मेड सर्वेंट घर की जो होती है वो भी ला सकती थी। बास्काइट कोई भी होता है, जो भी मेड सर्वेंट हमारी नौकरानियाँ, वो भी रह सकती थी। तो जिसके लिए हम तड़पते थे वो क्या था? वो डबल रोटी के घेरे में जो जिसको हम घेरते थे, सावधानी से ध्यान से सुनते थे, और कई बार जो होता था स्पेशल मीठा ब्रेड भी बनाया होता था उसने। सो ये बेकर का जो था उसके लिए लव था। ओके। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द zang zang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground.
सो बेकर का म्यूजिकली एंट्री होती थी, जैंग जैंग की आवाज़ आती थी जिस बैम्बू में उसने रखे होते थे दोनों तरफ। ओके, तो एक हैंड जो सपोर्ट करता था बास्केट को सर पर, एंड अदर हैंड बैंग द बैम्बू ऑन दी ग्राउंड, दूसरा हैंड जो था वो बैम्बू को ग्राउंड में रख करता था, हैंग करता था। सो ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और हर किसी को गुड मॉर्निंग कह के सबको मिला करता था, विश किया करता था मॉर्निंग में। एंड देन प्लेसेस बास्केट ऑन दी वर्टिकल बैम्बू, और जो वर्टिकल शेप में एक बैम्बू था उसके ऊपर अपनी बास्केट को रख दिया करता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट। एंड हम जो किड्स थे हम सब को थोड़ी डांट डपट करके, धमकियां देके हमें क्या कर दिया करता था, हम बच्चों को धमकी के साथ भगा दिया जाता था, और जो नौकर थी उनको ब्रेड दे दी जाती थी। फिर वो कहते हैं कि हम कहाँ मानने वाले थे, हम बेंच पे चढ़ते, दीवार पे चढ़ते, टोकरियाँ झांक कर देखते, किसी से भी किसी तरह किसी ना किसी तरह हम देखते रहते झांक झांक के। तो नरेटर कहते हैं कि मैं आज भी उन जो ब्रेड है उनकी महक को याद कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो बचपन होता है वो हमें इस चीज़ को ले जाता है और किसी भी चीज़ को रिमाइंड करता है। तो हम अपने बचपन की जब यादों को यहाँ उनके बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत सुखद एहसास होता है, बहुत प्लेजेंट फीलिंग होती है। देन ही सेज दैट कि जो बड़ों और बच्चों कड़े बच्चों के लिए तो क्या होता था उस टाइम, जो होती डबल रोटियां बड़ों के लिए थोड़ा हार्ड वाली और बच्चों के लिए सॉफ्ट वाली होती थी, कड़े बच्चों के लिए होते थे। फिर हम अपने दांतों को, जो अब वो नरेटर कहते हैं कि देन वी डिडंट केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, एंड वाई शुड वी वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। अब उस टाइम में टूथब्रश टूथपेस्ट ये भी नहीं हुआ करते थे, तो वी पीपल वर टोल्ड टू ब्रश द टीथ। तो हम कहाँ इस चीज़ की ज़हमत उठाते थे कि कौन अब जाए दातुन को तोड़ने जाके फिर दांतों को ब्रश करें। तो हम तो ना नहाने की ज़हमत उठाते थे और ना ही ब्रश करने की ज़हमत उठाते थे, हम तो सीधा ही सोचते थे बस ब्रेड खा लें। सो वी वुड ट्रबल, वाई शुड वी ट्रबल फॉर प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, एंड वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। और हम लोगों के लिए कौन सा ही ज़रूरी था, इतनी कितनी ज़रूरी बात थी ये। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और फिर नरेटर कहता है कि शेर ने भी कभी ब्रश किया है क्या। तो दैट नरेटर सेज कि इट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश द टीथ फॉर द किड्स। वो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। फॉर द किड इट्स एवरीथिंग इज अननेसेसरी एक्सेप्ट देयर एंटरटेनमेंट। Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. And then narrator gives the excuse कि गरम गरम चाय से दांत भी सब कुछ अच्छे से साफ हो जाता है. So why to brush our teeth? Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball. Just as a party or a feast loses charm without bread, not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolognese are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. And that time the मैरिजेस में ये मीठे जो ब्रेड होते हैं उनको बोल कहा जाता था। तो मैरिज में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि इनके बिना कोई शादी होती ही नहीं थी। शादी जो थी मीनिंगलेस थी ब्रेड बोल्स के बिना। तो जिस तरह के भी हों, चाहे वो पार्टी है या फिर कोई भी पार्टी है, तो अगर उसमें ब्रेड नहीं है तो इट लूजेज इट्स चार्म। तो नेटर सेज दैट कि एवरीबडी थिंक्स दैट कि अगर बॉल नहीं है मैरिज में तो इट्स नॉट अ गुड मैरिज। मीन्स मैरिज का चार्म ही सारा ख़त्म हो जाता विदाउट दिस। सो मैरिज का सारा अपना चार्म ही ख़त्म हो जाता था। नॉट इनफ कैन सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और जो हाउस की लेडी होती थी वो भी सैंडविच बनाती थी अपनी डॉटर की इंगेजमेंट के लिए। केक बोनलेस आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल। और केक्स एंड द सैंडविच जो थे अदर फेस्टिवल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। बोनलियस क्रिसमस एंड उसमें केक बहुत ज़रूरी था। नाउ नरेटर से इसकी बेकर की जो भट्टी होती है उसमें
वो भट्टी होनी बहुत ज़रूरी थी किसी मैरिज में, गांव में होना बहुत इम्पॉर्टेंट था, एब्सोल्युटली इसेंशियल था बेकर की फर्नेस होना गांव में. So the baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as kabai. The baker, the narrator says that कि एट दैट टाइम बेकर और द ब्रेड सेलर जो होते थे उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहा जाता था. एंड इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. ऐसे लॉन्ग टाइप का एक होता था फ्रॉक जो सर से लेकर नीचे नीज तक होता था. ओके. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt, trousers which were shorter than full length and ones and longer than half pants. And narrator then says कि our childhood we saw baker wearing a shirt and the trousers which were shorter than full length. उससे थोड़े छोटे होते थे full length से and उसमें pants भी होती थी. Even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees. अब even today जब आज भी हम देखते हैं कि जो एक हाफ पैंट पहनते हैं जो नीचे तक होती है, नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही ड्रेस लाइक अ पैडर. सो वो कहते हैं कि वो भी एक पैडर की तरह ड्रेस पहने हुए आजकल भी मिल जाते हैं जिनकी ऐसी ड्रेस होती है. ओके. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil, and baking was indeed a profitable profession in the old days. द बेकर दैट टाइम यूजुअली अपना जो बिल होता था मंथ के एंड में लेने फिर आ जाता था. डेली बेसिस पे अपना ब्रेड दिया करता था. मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन वॉल इन पेंसिल. और अपने बचपन को याद करते कि उस टाइम में डायरीज़ या वो सब नहीं होता था. पहले ज़माने में दीवारों में ही लिख लिया करते थे लोग अपना जो भी होता था विद अ पेंसिल, जो भी हिसाब किताब होता था तो उसको दिस वॉज रिकॉर्डेड ऑन दी वॉल. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. तो बेकिंग भी एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था ओल्ड डेज में. एंड द बेकर इन हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. और इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था कि अगर कोई बेकर है तो उसकी फैमिली तो कभी भी स्टार्व नहीं करती थी, भूखे नहीं मरती थी. मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन था, बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था. ही एंड हिज फैमिली सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. एंड वो और उसकी फैमिली एंड सर्वेंट जो भी थे अभी से दैट कि बहुत प्रॉस्परस और हैप्पी लाइफ जीते थे, हमेशा खुश रहते थे. एंड देयर प्लम्प फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू इवन टुडे any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker. So and then he says that कि his physique is plump. उसका शरीर जो मोटा शरीर इस बात का प्रूफ है कि वो बहुत अच्छा कमा रहा है. ही इज़ हेल्दी. एंड देन ही सेज दैट कि फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर. कोई भी इवन टुडे कोई एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक, जिसकी भी जैक फ्रूट जैसा होता है गोल मटोल सा, उसकी जो फिजिक होती है तो ही इज़ इजीली कंपेयर टू अ बेकर. उसे भी बेकर के साथ कंपेयर किया जा सकता है. ओके. सो here ओपन टेस्टिमनी मीन्स दैट पब्लिक स्टेटमेंट. जैसे हम किसी को भी किसी करेक्टर को क्वालिटी को हम जब पब्लिकली एक्सप्लेन करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेकर ऑफ गोवा. व्हेन नरेटर talks about his childhood and he recalls his childhood memories, that how these children in living in Goa used to live their life and how they feel happy when when a baker reaches to their locality. So this is all about the first unit, that first chapter of this unit, a baker from Goa. Thank you and have a nice day.